جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے جمعہ جو ہے خصوصاً آتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، پھر ہم رخصت ہو جاتے ہیں. مگر جب ہم 1400 سال پیچھے جب آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر میں کس طریقے سے جمعہ منایا جاتا تھا، لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو تعلیمات دی تھی، کیا ان کو دین کے کام کے لیے بتایا تھا. تو وہاں پر میں صحابہ اکرام جمع ہوتے تھے تو ایک درس لے کے اٹھتے تھے جمعہ میں کہ ہم کو آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ جمعہ کا ایک دن بیان ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خیر خیریت دیتے ہیں اور دین کی گفتگو بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو ہے انسان دین کی گفتگو کرے، دین کے بارے میں جو ہے سنا اپنا خیال رکھے، دین کے بارے میں جو ہے سنا اپنی صلاحیتیں جو ہے سنا اس کے اندر میں لگائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصاً جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دے رہا ہے. وہاں پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبے میں آپ نے جمع کیا تھا 1,24,000 صحابہ اکرام جمع ہوئے تھے اور وہاں پر میں مقصد بتایا گیا تھا، کام بتایا گیا تھا، دین کی اہمیت بتائی گئی تھی اور آپ کے بعد جو دین کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس چیز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے خطبے میں بتایا. تو تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے جو گھوڑے تھے وہ گھوڑوں کا رخ جس طرف ہوتا تھا اسی طرح صحابہ اکرام جو سنا نکل گئے اور پہلے ساری دنیا کے اندر میں دین کو لے کر، اسلام کو لے کر، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی ہدایت کی کتاب آنے والی نہیں ہے. نماز جیسی عبادت، مکمل عبادت اور کوئی دوسری اب آنے والی نہیں ہے. قرآن کریم سے ہٹ کر اب کوئی ہدایت پا نہیں سکتا، نہ ہی اس کے لیے کوئی اور راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے سوائے قرآن مجید کے اور کوئی راستہ اب رہا نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم جو ہے اپنی جو سنا ساری دنیا کے اندر جو سنا تم پھیل جاؤ. تو صحابہ اکرام تمام جو ہے سنا دنیا میں جو سنا پھیل گئے. 1,24,000 صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 10,000 صحابہ اکرام کی جو مزار مبارک ہے وہ ہمارے کو ملتی ہے مکے میں.
तब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएं से कभी बाएं से ऐसा गोल जो है चक्कर लगाते रहते कि जो है कहीं कोई दुश्मन जो है इस तरफ से ना आ जाए या कोई दुश्मन जो है इस तरफ से ना आ जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आप जो है ऐसा चक्कर लगाते रहते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर से, क्या हुआ तुम क्यों जो है ना कभी इधर से दाएं से कभी उधर जाते हो, कभी इधर से जाते हो, कभी पीछे दिखते हो, मुझे क्या बात है? तो आप फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे जो है इस बात का अंदेशा होता है, इस बात का जो है ना मुझे जो है ना गम होता है या फिर खौफ होता है कि कहीं दुश्मन जो है आपके पीछे से ना आ जाए, कि कहीं दुश्मन जो है दाएं से ना आ जाए या कोई बाएं से ना आ जाए। इसलिए मैं जो है ना इस तरीके से जो है आपकी हिफाजत के लिए मैं चक्कर लगा। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला ताहत इल्लल्लाह, मत डरो अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि हमारे साथ में अल्लाह है। तो जो कोई दीन के काम के लिए जहां कहीं भी निकलता है तो उसके साथ हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ये माने हैं जुम्मा के कि जो है सना किस वजह से जो है सना यहाँ पर जमा किया जाता है। तो इस बात का हमको जो है सना हमेशा एहसास होना चाहिए, इस बात का हम हमारे दिल में जो है सना एक वादा करके जो है सना जुम्मा में से उठना चाहिए कि हम दीन के लिए क्या कर सकते हैं। सुबह से कहीं भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी। आप जबान से कुरान तो पढ़ रहे हैं, आप जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, आप अपना इजहार जबान से तो आप कर रहे हैं। अगर वही चीज अगर दिल से हो जाए तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों भी जो है आपसे राजी हो सकते। तो यही काम बता रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन जमा होने के ताल्लुक से कि हमको जो है ना हर वक्त दीन की फिक्र होना चाहिए, क्योंकि जो है दीन के लिए दो किस्म की जो है ना जरूरतें पड़ती है। इंसान के अंदर जो सलाहियत होती है वो दो किस्म की सलाहियत है। या तो इंसान जान से मदद कर सकता है, यानी कि सहाबा इकराम जिस तरीके से अपनी जान भी लगाए अपना माल भी लगाए, वो लोग कभी जो है माल अलग और जान अलग नहीं करे। सहाबा जहां कहीं भी माल की जरूरत पड़ती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी जो है ना माल का आप जो है लाने के लिए गए थे तो सारे के सारे सहाबा इकराम जो है ना माल अपना जो है ना ला करके गए थे और माल और जान को अलग नहीं करे। मगर अंसार में कुछ लोग ऐसे थे अंसार जो है माल से मदद करते। तो जिस इंसान के अंदर
इंजीनियर हैं, हाँ, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये दुनिया की नजर में सबसे बड़ा वली है। दुनिया की नजर में वली कौन है? जो दुनिया के अंदर में डॉक्टर है, जो फिलोसोफर है, जो पढ़ा लिखा है, जो पैसे वाला है, जो दुनिया में कामयाब हो गया, उनकी नजर में वो सबसे बड़ा वली है। मगर ये क्यों होता है? जब आप दीन से दूरी रखते हैं, दुनिया से जब आप मोहब्बत रखते हैं, तो तब आप जो है सुना दुनिया के करीब हो जाते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होने की वजह से ये तमाम की तमाम जो है सुना आपके अंदर में जो सलाहियतें हैं वो कम होते हैं। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है कि तुम जो है सुना जब तुम दुनिया भी कर रहे हो, जब तुम पैसा भी अगर तुम कमा रहे हो, तो ये सोच के कमाओ कि मेरा पैसा जो है सुना किसी तरीके से दीन में लगे और किसी तरीके से इस पैसे से अल्लाह राजी हो जाए। और जब तक आप हलाल कमाएंगे नहीं, जब तक माल जो है दीन को लगता ना, बेईमानी का पैसा अल्लाह के नजदीक ना ही कभी आया है, ना ही कभी दीन को लगा है। ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो जो माल आप कमा रहे हैं उसमें से जो है सुना दीन के काम के लिए लगाओ, ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अंसार और जो सहाबा इकराम जन्नत के एक ही तबके में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने माल से मदद की। ये सब सहाबा इकराम ने अपनी जान भी लगाई, अपनी माल भी लगाई। ये चीज सहाबा इकराम की सलाहियतें जितने की थी, तमाम के तमाम जान से माल से तमाम सलाहियतें जो है सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लगाए। तो आज भी वही दीन है, आज भी दीन को फैलाने की जरूरत है। आज भी दुनिया के अंदर में बेतौरी फैली हुई है। आज भी दुनिया के अंदर में वो आज से जो 1400 साल पहले जिस तरीके से माहौल था, मतलब कि ऐशो आराम की जिंदगी, यानी कि बुत परस्ती ज्यादा, उस वक्त में 360 थे, यहाँ पर में और भी ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर में और भी काम जो है करना पड़ा हुआ है, और भी काम है यहाँ पर में जो है जान और माल के बगैर फैलने वाला नहीं है। खाली जान लगाने के तो भी दीन नहीं फैलता, उसको माल की भी जरूरत है। तो अल्लाह ताला यही फरमाया तुम जो है ऐसे लोगों के साथ हो जाओ, ऐसे सच्चे लोगों के साथ हो जाओ जो अल्लाह के हकीकी दीन को जो सुना लेके मैदान में निकलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद आप तन्हा अकेले आप पुरानी मदीन लेकर के आपने ऐलान किया था। उस वक्त में सामने जो है सुना कोई मुसलमान नहीं थे, सिवाय काफिर के एक भी मुसलमान वहां पर कोई नहीं था। और मकसद क्या था? सारे मक्का के अंदर में जो कोई भी आपके सामने ना सबको जो है दायरे इस्लाम में लेके आना। यहाँ पर में सहाबा इकराम ने इस किस्म की जो है सुना अपनी सलाहियतें जो है सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लगा दी। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए ये है जुमा। तो अपना माल से भी जो है सुना इंसान अल्लाह के दीन की मदद करते हुए, दुनिया का काम करते हुए वो जो है सुना अल्लाह को पा सकता है और अल्लाह के नजदीक एक अपना मुकाम पा सकता है। मिन नबी सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन का जो मुकाम है वो जो है कुर्बानी से ही होता है। अगर कुर्बानी नहीं है आपके अंदर में तो जो है आप जो है ईमान में मजबूत नहीं हो सकते आप। और एक चीज जुमा, जैसा कि हम अजान जो है सुना हम सुनते हैं, अजान जो है सो मदद साथ देते भी हैं, तो अजान के लिए भी जो है सुना खुसूसन आया है। अजान जो है दरअसल में इंसान नमाज पढ़ने से पहले यहाँ पर में मौजूद साहब अजान दो या नहीं दो वक्त देख के इंसान आ जाता है। मुसलमान जो है अजान का इंतजार नहीं करता है, जोहर की नमाज हुई या अजान हुई तो इसमें जाऊंगा बोल के नहीं, वो जो न हो तो आज खराब रहता कि नहीं खराब रहता कि अजान हो या न हो, मगर नमाज पढ़ने वाला इंसान पाबंदी वक्त देगा निकल के आया, ये नमाज में घुस जाता चाहे कोई भी वक्त हो, फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो। मगर अजान का जो मसला, खास जो मसला है वो जो है अल्लाह ताला ने किस तरीके से रखा है, तुम
جو ہے غیر قوم کو دعوت دے کے نماز کے لیے آنا. غیر قوم جو بھی ہے ان تک تم جو ہے اسلام کی دعوت کو پیش کر کے تم مسجد تک آنا. تو یہاں پر مولانا صاحب اذان دے رہے معاشرے میں، آپ کا کام جو ہے وہ اکیلے مولانا صاحب محلے کی ایک مسجد پہ ٹھہر کے کام کر رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے. اس وقت میں جماعت میں جب اذان ہوتی تھی، پہلے اذان نہیں ہوتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل کے اپنے صحابہ کے ساتھ میں اب گھر گھر جا کے جو ہے سنا ہوتے تھے. کوئی لشکر آتا تو ان کو روک کے جو ہے سنا بتاتے تھے کہ بتاتے کہ جو